Hello everyone. In the last class, we have gone through different plots, different graphical representation. We have discussed about, let me go through the last class discussion quickly. So we have discussed about line plot, right? There we have used the function plot. Then we have discussed about bar plot. And for that, we have used the code plt.bar and uh, then we have used histogram. We have discussed about histogram, very important graphical, tool to understand how the data is distributed. And for that, we use hist function, right? And then we discuss about scatter plot. That scatter plot actually shows us the correlations, right, with individual data points. And then for that scatter plot, we have used scatter, right? Scatter function. Then pie chart we have discussed to show proportion among different categories. And for that, we have used PIE, right? And auto PCT, that is the percentage wise, and rotation is 140, and colored different colors for different contaminants distributions or different parts. For that, we have used plot.gm.paired colored colors, and we got the output like this for our data that we have discussed, or we have discussed, or you can say taken for our practicals. Now, continuing with this, today in the model T, because we have completed up to model 2 of a standard J levels that is adopted for current demand of data science in industrial applications, or you can say an emerging syllabus of data science. So up to model 2 we have completed. So you can go through the previous lectures if you have missed those lectures. And if you find any topic difficult, you can again directly ask me through comments. Now, next thing is the model T. But in the model T, you can see that this part we have already discussed: line plots, scatter plots, histograms. Right now, this one is very important. That is box plot. तो आज हम बॉक्स प्लॉट क्या है, कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे देखेंगे डेटा को बॉक्स प्लॉट के थ्रू, वो डिस्कस करेंगे. So box plot is also known as box and whisker plot. Box and whisker plot. So box plot क्या है? A box plot is a graphical representation of the spread and distribution of a data set. It summarizes the data using 5 key statistical values. तो ये हमारे डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं, और इसमें 5 आपका स्टैटिस्टिकल वैल्यू यूज किया जाता है. फर्स्ट इज मिनिमम. मिनिमम दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग द आउटलायर्स. ठीक है, आउटलायर्स को एक्सक्लूड करके जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मिनिमम देंगे. देन फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज Q1 is 25% of the data is below this value. तो बाकी जो 25% of the data है वो इस क्वार्टाइल वैल्यू से बिलो है. ठीक है. Then median Q2, the middle value of the data set, that is the 50%. Then third quartile QT, that is 75% of the data is below this value. तो फर्स्ट क्वार्टाइल में Q1 क्या बता रहे हैं कि आपका 25% of the data is below that first quartile Q1. Then median Q2 is the 50%, and third quartile QT is 75% of the data is below this value. Then maximum is the largest value, excluding outliers. तो ध्यान देना, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है ये हमने आउटलायर्स को एक्सक्लूड करके कैलकुलेट किया है. ठीक है. तो 25%, 50% एंड 70%. तो ये हमने देख लिया कि 5 key statistical values are there in a box plot, and this box plot helps to detect outliers and skewness in the data. तो डेटा कैसे skewed है, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये भी हमें बॉक्स प्लॉट बताते हैं. Now, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, what is the structure? You can see here minimum, then Q1,
राइट। सो Q1 तक क्या है, 25% ऑफ द डेटा सेट, इससे बिलो है। देन Q2 मिडिल में है, राइट। सो ये जो वैल्यू है आपको दिखाई दे रहा है, ये मीडियन वैल्यू है। देन QT तक क्या है आपका, 75% ऑफ द वैल्यू, राइट। देन मैक्सिमम। सो द बॉक्स रिप्रेजेंट्स Q1 to QT, 25% से 75%। The box represents Q1 to QT, interquartile range or IQR. ठीक है, IQR or interquartile range. Then the line inside the box is the median, that is Q2. Now whiskers extend to the minimum and maximum values within 1.5 into IQR from the quartiles. Then dots outside the whiskers are outliers. जो भी और डाटा पॉइंट मतलब द डॉट्स मिलेगा आपको, ये whiskers के आउटसाइड में है तो वो आउटलायर होगा। तो फिर से एक बार देख लो, मिनिमम देन Q1 to 25%, Q2 50%, and this is median, and then QT 75%, then max। और ये जो whiskers minimum extend to the minimum and maximum values within 1.5 into IQR, और IQR क्या था, interquartile range और IQR। ठीक है। नाउ इसको हम कहाँ यूज करते हैं, यूज केसेस आर कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशंस अक्रॉस कैटेगरीज like exam scores across different classes, detecting outliers, visualizing the data spread। इसका एक हम प्रोग्राम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए import matplotlib.pyplot as plot। ठीक है, तो प्लॉट इज द एलियासेस ऑफ दिस matplotlib.pyplot। सैंपल डाटा सेट हमने लिया, ठीक है, 45 48 ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज लिया 85 तक। इसके लिए हमने बॉक्स प्लॉट क्रिएट किया। तो बॉक्स प्लॉट ऑब्वियसली मैटप्लॉटलिब से हमने लिया है, तो प्लॉट डॉट बॉक्स प्लॉट और डेटा जो है ये हमने एंटर किया है। टाइटल बॉक्स प्लॉट ऑफ स्टूडेंट स्कोर्स, वाई लेवल स्कोर्स, ग्रिड ट्रू। सो ग्रिड ट्रू मतलब ताकि हमें जो आउटपुट मिले हम उसको अच्छे से देख पाए और उसका विजुअलाइजेशन और ज्यादा अच्छा हो, इसलिए हमने ग्रिड यूज किया है। देन वी गॉट आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम एंड दिस IQR, दिस इज Q1, मीडियन है ये है Q2, एंड देन दिस QT। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल का क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से एक इंटरप्रिटेशन देखो, द बॉक्स, दिस बॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स, माउस कर्सर जहां है आप देख सकते हो। दिस बॉक्स shows the middle 50% of the scores. The line inside the box is the median score. If one whisker is longer than the other, data may be skewed. If one whisker is longer than the other, then data may be skewed. Any dots outside the whiskers are potential outliers. यहाँ पे कुछ मिल रहा है आपको, दिखाई दे रहे हैं, तो वो आउटलायर्स है। ठीक है, so Q1 25%, Q2 50%, QT 75%, IQR QT minus Q1। Then IQR तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Then outliers values uh, that is less than Q1 minus 1.5 IQR or greater than QT। ठीक है, QT plus 1.5 in IQR। तो Q1 minus 1.5 IQR से जो वैल्यूज कम होगा, मतलब जो वैल्यूज उस रेंज से बाहर होगा, वो हो जाएगा आउटलायर्स। और Q3 प्लस 1.5 IQR से अगर आपका वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो वो भी आउटलायर्स होगा। Sorry। तो I can show you the code that I have written in the spider। तो स्पाइडर में हमने ये कोड आपको अभी दिखाया था, ये लिख लिया है। import matplotlib.pyplot कोड तो ऑलरेडी मैंने इलस्ट्रेट कर दिया है। तो देखते हैं आउटपुट इसका कैसे आता है। यू कैन सी हियर द आउटपुट। तो ये सारे जो वैल्यूज हैं, जो हमने वैल्यूज लिया था, इसमें से एक वैल्यू 85 ऐसा है जो बाकियों से बहुत डिस्टेंस पे है, और यू कैन से QT प्लस 1.5 इंटू IQR इससे ज्यादा है, तो वो आउटलायर कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज द आउटलायर। ठीक है, स्क्विज का शेम से बाकी तो स्क्यूट की बात ही
यहाँ पे हम कर रहे हैं स्क्यूट है नहीं, और आपका ये मीडियन है, ये बॉक्स प्लॉट है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। गुड, ओके, ठीक है। देन लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। तो देखा आपने क्यू टी प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर से ज्यादा था, वो 85 वैल्यू, 85 नाम के जो वैल्यू था, मतलब 85 जो डाटा पॉइंट था, मतलब वो है आपका आउटलायर इन दिस केस। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। तो ये पूरा याद रखना, Q1 25%, Q2 50, QT 75, IQR मतलब QT minus Q1, outlier मतलब if value is less than Q1 minus 1.5 into IQR, और if value is greater than QT plus 1.5 into IQR, जो अभी हमारा केस में हुआ। तो बॉक्स प्लॉट समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है आपका डेटा एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग विथ पांडास। ग्रुपिंग करना मतलब वैल्यूज को हम ग्रुप करेंगे। सो ग्रुपिंग इन पांडास मीन्स यूज टू स्प्लिट द डेटा इनटू ग्रुप्स, एंड we can apply the functions like sum, mean, and then combine the results. तो इसके लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय। सिंटेक्स इज this df stands for, of course, data frame, group by that column name by which we want to group actually, dot एग्रीगेट फंक्शन, जो कि आपका साम हो सकता है, मीन हो सकता है, जो भी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, इंपोर्ट pandas as pd, क्योंकि pandas से ही हम ले रहे हैं। तो इंपोर्ट pandas as pd डेटा ले रहे हैं हम, डिपार्टमेंट आई टी फाइनेंस, एचआर फाइनेंस। यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो कुछ कुछ वैल्यू रिपीट हो रहा है, जैसे आई टी उसके अकॉर्डिंग सैलरी, मतलब आईटी का सैलरी, एचआर का सैलरी, ऐसे से हमने लिखा, बट आईटी यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम ग्रुप कर सकते हैं, आईटी का एवरेज सैलरी क्या है, राइट, फिनेंस का एवरेज सैलरी क्या है, क्योंकि फिनेंस 2 बार है, एचआर का कितना हो सकता है। सो देन डेटा फ्रेम बनाया हमने, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, पास कर दिया ये डेटा। ठीक है, जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, डिक्शनरी हम यूज कर रहे हैं। अब इसको, इसके थ्रू हमने डेटा फ्रेम बनाया। नाउ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड गेट एवरेज सैलरी। सो डीएफ डॉट ग्रुप बाय कौन सा था आपका वैल्यू, जिसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, डिपार्टमेंट, एंड इसमें हमने क्या लिया, सैलरी, सैलरी डॉट मीन। ठीक है, एंड असाइन टू एवरेज सैलरी, देन प्रिंट एवरेज सैलरी। तो ये हो गया आपका सैलरी वाइज प्रिंट हो जाएगा। देन और एक डेटा लिया हमने स्टेट वाइज से, बिहार, उड़ीसा, बिहार, असम, असम, सैलरी ऐसा ऐसा मिल रहा है, उसको भी हमने ग्रुप किया एवरेज सैलरी वाइज। डेटा फ्रेम बना लिया पहले, डेटा टू को डेटा फ्रेम में पास करके, और डेटा फ्रेम इज द डेटा फ्रेम टू, एवरेज सैलरी सेट वाइज, df do dot group by state, salary mean, print average salary state wise। तो इसका हम देखेंगे कैसे स्पाइडर में हमने इंप्लीमेंट किया, जस्ट 1 मिनट को। तो यू कैन सी हियर इंपोर्ट pandas as pd। ये सेम, ये वाला पार्ट का आपको मैं दिखा देता हूं पहले। I have selected, then so you can see here finance एवरेज ये है, एचआर का ये है, आईटी ये क्या है एग्जैक्टली exactly? देखो, एचआर का 2 बार रिपीट हो रहा है, आईटी का 2 बार, फिनेंस का 2 बार। तो ये दो सैलरी को एवरेज करके हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप किया, इसलिए हमने ग्रुप बाय पे क्या लिखा, डीएफ डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, और कौन सा वैल्यू लिया हमने, सैलरी डॉट मीन। ठीक है, सिमिलरली ये डाटा, इसको हमने सिलेक्ट एग्जीक्यूट किया। आसाम के लिए, बिहार, उड़ीसा, ये सब हमने स्टेट वाइज सैलरी का एवरेज निकाल के प्रिंट किया। ठीक है, नेम सैलरी, डी टाइप फ्लोट 64। आई थिंक नाउ ये पूरा क्लियर है आप लोगों का। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो कॉमन जो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस है, बेस्ट फॉर बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विथ pandas, वी हैव मीन, मीन तो यू नो, एवरेज ऑफ वैल्यूज, मीडियन, that is the middle value in sorted data। याद रखना, median means middle value in sorted data, right? Mode means most frequent value, and then STD stands for standard deviation, VAR or variance of values,
मीन, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू डिस्क्राइब समरी स्टैटिस्टिक्स। इसमें ये जो फर्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मीडियन एक्चुअली मिडिल वैल्यू है, बट सॉर्टेड डेटा को सॉर्ट करके हम मीडियन वैल्यू निकाल रहे हैं। देन मोड, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है। तो इसको लेके भी हमने एक प्रोग्राम बनाया, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, डाटा ले लिया टोटल मार्क्स का। इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स हमने लिया है, 370, 370, 400, ऐसे कुछ वैल्यूज लिया है, जिसमें कुछ कुछ वैल्यूज रिपीट हो रहा है। जैसे आप 370 यहाँ पे देख सकते हो, 2 बार, 400 3 टाइम्स, 450, 499, इस तरह कुछ कुछ वैल्यूज रिपीट हो रहा है। अब ये डाटा जो डिक्शनरी फॉर्म में है, हमने डाटा फ्रेम फंक्शन में पास करके एक डाटा फ्रेम बनाया, पीडी डॉट डाटा फ्रेम डाटा। देन हमने यूज किया स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। कैसे कर रहे हैं? प्रिंट मीन, दिया टोटल मार्क्स से मीन, ठीक है, डॉट मीन। Similarly for median, for mode, then standard deviation STD, variance here, and that ultimately the whole statistical summary is given by dot describe। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मीन करके यहाँ पे जो ले रहे हो, जिसमें टोटल मार्क्स लिया डाटा फ्रेम का, और उसमें डॉट मीन। सिमिलरली मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन डिस्क्राइब। ठीक है, इसका भी आउट मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। जस्ट 1 minute is our program. Let's execute this. You can see here mean 391, median 400. After sorting, we got 400. Then standard deviation is 73.72. Minimum is, what is the minimum value? Of course, 250. Maximum you can find it like that. मोड इज, सी मोड में आपको दिखाई देगा 400 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। मोड क्योंकि आपका एक से ज्यादा मिल सकता है। सपोज 403 टाइम्स रिपीट किया है, 370 अगर 3 टाइम्स रिपीट करता है, तो इसलिए हम मोड का जो रिजल्ट है वो सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मोड का आंसर आपको मिल रहा है आउटपुट में 0, 400, क्योंकि पहला जो है इंडेक्स 0, 400, मतलब अगर 2 मोड मिलता तो 1, 370, अगर 370 भी उतना ही नंबर रिपीट कर रहा होता तो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मोड का रिजल्ट हम सीरीज में यहाँ पे बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये 0 का मतलब पहला मोड ये है, ठीक है, फर्स्ट मोड। इंडेक्स इज ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। अगर दूसरा मोड मिलता तो 1 से 4 मोड, अगर 370 होता तो 370। देन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, वेरिएंस आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है। एंड समरी में क्या क्या आ रहा है आप देख सकते हो। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25% कितना है, 50%, 75%, मैक्सिमम। सो दीज आर द समरी स्टैटिस्टिक। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू, राइट? ओके, वेरी गुड। We have seen that line plot हमने क्यों यूज किया। line plot we have got it from matplotlib to show trends. Scatter plot again from matplotlib to show the correlations. Histogram from again matplotlib to show the data distribution. Boxplot from matplotlib to show the quartiles and outliers, right? यहाँ पे जो हमने एग्जांपल में दिखाया था, 85 was the outlier, right? That is greater than QT plus 1.5 into IQR, right? And grouping with the help of function group by from Pandas, and that is for aggregating the data. Statistical analysis again from Pandas, like get mean, median, standard deviation, variance, etc., or summary of statistical data, right? Statistical data analysis. So ये सारे हमने डिस्कस किया। तो इसी के साथ आपका मॉड्यूल 3 कंप्लीट होता है। को ये विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू फ्रीक्वेंटली यूज इन एनी प्रोजेक्ट of data science. So please repeat the lecture, go through the practicals properly. Again, I will say that if you have any doubt, ask me from comments. So that's it for today. Thank you very much.